السلام علیکم ناظرین، روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ مانجرا پروجیکٹ ڈیم کی تعمیر سے حلقے بانسواڑہ و جکل کی عوام میں خوشی کی لہر۔ 15 کروڑ کی لاگت سے جاری تعمیری کاموں کا ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچونام سرینواس ریڈی نے لیا جائزہ۔ بی جے پی نے صدارت انتخاب کے لیے دروپدی مرمو کے نام کا کیا اعلان۔ انہیں پہلے قبائلی صدر و دوسری خاتون صدر جمہوریہ بننے کا ہوگا اعزاز حاصل۔ سماج میں انصاف و عدل کے لیے کام کرنے والا پیشہ صحافت۔ اربن رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا، انہوں نے نظام آباد پریس کلب کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کیا خطاب۔ آرمور رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کا دورہ آرمور، عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی و عوامی شکایتوں کی سماعت کرتے ہوئے مختلف تقاریب میں کی شرکت۔ شہر میں ٹاسک فورس کا دھاوا، 1,50,000 روپیوں کی مالیت کا گٹکا و سگریٹ ضبط۔ میٹرو سٹی کی طرز پر شہر میں قیام کردہ فرنیچر شو روم رائل لک کا اربن رکن اسمبلی بی گالا گنیش گپتا، ٹی آر ضلع صدر و پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے کیا افتتاح۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ برسات کے پانی کی نکاسی کے لیے محکمہ بلدیہ متحرک خلا روڈ پر موجود نالیوں کی صفائی کا آج سے کیا گیا آغاز، عوام میں تشویش۔ شہر نظام آباد کے علاقے خلا روڈ پر برسات کے پانی کی نکاسی کو یقینی بنانے کے لیے آج محکمہ بلدیہ کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے نالیوں کی صفائی کے لیے آج سے کارروائی کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت خلا روڈ سے منسلک نالی جس کی عدم صفائی کے سبب پانی کی نکاسی کے لیے دشواری ہو رہی تھی، اس کی صفائی کا آج سے آغاز عمل میں لایا گیا تاکہ وہ پانی احمد پورہ کالونی میں داخل نہ ہو۔ اسی طرح شہر میں دیگر مقامات پر بھی موسم برسات کے مد نظر مختلف اقسام کی کام جاری ہے۔ 24 جون بروز جمعہ کو نظام آباد میں جلسہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہتمام۔ مرکز اہل سنت الجامعۃ الرضویہ انوار العلوم ہاشمی کالونی نظام آباد کے زیر اہتمام بتاریخ 24 جون بروز جمعہ بوقت بعد نماز عشاء بمقام احاطہ مرکز اہل سنت الجامعۃ الرضویہ انوار العلوم نظام آباد پر جلسہ عام بعنوان تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ یاد حضور صدر الشریعہ وہ الحاج الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ القادری مدد اللہ النورانی اتر پردیش کا خصوصی خطاب ہوگا، جبکہ مہمانان مقررین میں ابو یوسف امجدی ازہری قبلہ یو پی، محمد شاہد رضا ممبئی مہاراشٹر ابھی مخاطب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ حضور محدث کبیر مرکز اہل سنت مسجد چشتیہ ہاشمی کالونی پر نماز جمعہ کی امامت فرمائیں گے۔ تمام برادران اہل سنت سے گزارش کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرماتے ہوئے ثواب دارین حاصل کریں۔ مزید تفصیلات کے لیے 9701786870 9848365183 پر رابطہ پیدا کریں۔ مدرسہ معاذ بن جبل کے زیر اہتمام 25 جون کو بودھن میں خواتین کے لیے خصوصی اجتماع کا انعقاد، خواتین سے شرکت کی اپیل۔ مولانا محمد عبدالحمید السائی قاسمی بانی و ناظم مدرسے کے مطابق مدرسہ معاذ بن جبل بودھن کے زیر اہتمام خواتین کا اجتماع 25 جون کو ہفتے کے دن ظہر سے عصر تک مدینہ فنکشن ہال انیسہ نگر آچن پلی میں طے ہوا ہے، جس میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مفتی غلام ازدانی اشاعتی صاحب صدر جمعیت علماء بدر اور حضرت مفتی عبدالصبور قاسمی صاحب صدر جمعیت علماء ظہیر آباد کے بیانات ہوں گے۔ تمام ماؤں اور بہنوں سے اجتماع میں شرکت کی گزارش ہے۔ واضح ہے کہ اس سال بھی مدرسہ معاذ بن جبل میں قربانی کے حصوں کا نظم ہے اور گوشت کی تقسیم کا بھی انتظام ہے۔ بودھن و اطراف کے احباب سے اپیل ہے کہ
अपना चर्म कुर्बानी मदरसा माज बिन जबल को इनायत फरमा कर सवाब जारिया हासिल फरमाए। राब्ते के लिए सेल नंबर 9441086528 पर। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े मिले कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा सब्सिडी फैन के डॉक्टर महिला ग्रुप की खवातीन में तकसीम अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सुभाष नगर में वाक़े मिले कैंप दफ्तर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा सब्सिडी फैन की डॉक्टर महिला ग्रुप की खवातीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि रियासती हुकूमत बरक़ी को बचत करने के मकसद के तहत निजामाबाद हल्क़े असम्बली के लिए 28 वाइट्स पर मबनी 100 फैन की मंजूरी अमल में लाने के बायस आज MLA कैंप दफ्तर पर 5000 रुपये का फैन सिर्फ 500 रुपये में डॉक्टर महिला ग्रुप की खवातीन में तकसीम अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में निजामाबाद के मेयर नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS कॉर्पोरेटर्स, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, TSREDCO ओहदेदारान, मिप्मा ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। 100 మంది మిప్మాలో పనిచేసే వాళ్ళకి డ్వాక్రా గ్రూపుల్లో పనిచేసే మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి 100 ఫ్యాన్ల చొప్పున మన రెడ్కో నుంచి అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది సబ్సిడీ కింద। వాస్తవానికి దీని రేటు 5000 రూపాయలు ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఫ్యాను, కానీ 500 రూపాయలకు మాత్రమే వీరికి అందజేస్తా ఉన్నాం। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే 80 వాట్లతో పనిచేస్తున్నటువంటి ఫ్యాను కేవలం 28 వాట్లతోనే పనిచేయడం। दलित खानदान की माशी तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम का निफाज जुक्का रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों दलित खानदानों में ट्रैक्टर व ब्लोरो गाड़ियों की तकसीम। जिले कामारेड्डी पिटलम मंडल के मुकाम पर जुक्का रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकिम करने के मकसद के तहत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूर करदा 2 ट्रैक्टर व बोलेरो गाड़ियों की MPDO ऑफिस में मुस्तहकिन के हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम मज़ाहिब के अवाम के साथ बराबरी का सलूक करते हुए दूसरी रियासतों के लिए एक मिसाल कायम करने का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दलितों की माशी पसमानदगी को दूर करने की और इन्हें अपने तौर पर खुद रोजगार हासिल करने के लिए दलित बंधु स्कीम का निफाज अमल में लाया है और इस दलित बंधु स्कीम के तहत फी हल्के असम्बली में 100 दलित खानदानों को इनके तौर पर मुंतखब करदा कारोबार के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूदी के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को अमली जामा पहनाते हुए अवाम को तरक्की की जानिब गामजन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुतहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, MPP कविता विजया, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी, अवामी नुमाइंदे, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान व मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఎన్నో రోజులుగా జొన్నల కొనుగోలు కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రైతు మిత్రులకు శుభవార్తగా నిన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సీఎం ఆఫీస్ నుంచి నోట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు తెల్ల జొన్నల కొనుగోలు విషయంలో జీవో రాబోతుంది కాబట్టి రైతులందరూ మరి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను। మార్కెట్లో 17-18 కూడా मोरताल मंडल के प्राइमरी वेटरनरी सेंटर पर मवेशियों को सेहतमंद रखने के लिए इस माह की 8 तारीख से 14 तारीख तक अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाने का वेटरनरी डॉक्टर गौतम राज ने किया इजहार। मोरताल मंडल के मुकाम पर वेटरनरी डॉक्टर गौतम राज ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मवेशियों की निगहदाश्त व इनको सेहतमंद रखने के लिए इसी माह की 8 तारीख से 14 तारीख तक प्राइमरी वेटरनरी सेंटर पर मवेशियों को मुख्तलिफ अमराज से बचाव के लिए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई, जिस पर मेंढे व बकरियों को पालने वाले इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने का इजहार करते हुए कहा कि जानवरों की निगहदाश्त इन्हें बीमारियों से महफूज रखने के लिए एनिमल अमला और स्टाफ को मुतहरिक करने का इजहार किया। సరిగ్గా నడవలేకపోవడం కుంటడం అటువంటి సమస్యల నుంచి కూడా వాళ్ళు కాపాడుకోవచ్చు అన్నట్టు। అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ చిటుక రోగం నుంచి వచ్చే సమస్యల నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు। దీనికి ఎంటీరోటాక్సిమియా వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఉంటుంది। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो,
शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम को सेहतमंद माहौल की फ़राहमी के लिए पौधे लगाना निहायत ही ज़रूरी होने का नूडा चेयरमैन सी प्रभाकर रेड्डी का खिताब। माकलून मंडल के मुकाम पर नूडा चेयरमैन सी प्रभाकर रेड्डी ने 8वें मरहले के हरितहरम प्रोग्राम के तहत अमरात तांडा वडियाटपल्ली में पौधे लगाते हुए कहा कि माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा हरितहरम प्रोग्राम के तहत हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर के इतराफ एक नाफ पौधे लगाकर माहौल को खुशगवार बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अमरात तांडे के सरपंच मेघावत किशन लाल, वडियाटपल्ली सरपंच श्रीमती आर श्री सुधा राजेश्वर, एडवाइजरी मेंबर के रमेश व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद जिले जर्नलिस्टिक यूनियन की जानिब से निजामाबाद नौमुंतखब प्रेस क्लब ओहदेदार व मीडिया जिले एक्रीडिटेशन कमेटी मेंबरान की शानदार तहनीत। तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट तेलंगाना TUWJIJU जिले निजामाबाद सदर की सदारत में TNGOs यूनियन कॉन्फ्रेंस हॉल में नौमुंतखबा निजामाबाद प्रेस क्लब एग्जीक्यूटिव हार्डी और तमाम आया जिले मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी में 3 मुख्तलिफ जिम्राबंदी के तहत नामजद मेंबरान के एजाज में तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में बहसियत मेहमान खुसूसी रियासती तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर अहमद अली खान के नेशनल काउंसिल मेंबर भद्रा रेड्डी, स्टेट काउंसिल मेंबर संपत राव, प्रभाकर, गंगादास, प्रमोद, जावेद पाशा, गोविंद राजू व दीगर जर्नलिस्ट ने शिरकत की। इस तहनीती तकरीब में निजामाबाद जिले जर्नलिस्ट यूनियन ने निजामाबाद प्रेस क्लब सदर बी शेखर, जनरल सेक्रेटरी राजलिंगम, नायब सदर संगीता नरेंद्र, ज्वाइंट सेक्रेटरी अजमत खान, हनगम ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजू के अलावा एग्जीक्यूटिव मेंबरान चिटम प्रसाद, गोविंद राजू, प्रमोद और मीडिया या एक्रीडिटेशन कमेटी 9 नामजद मेंबरान अशफाक अहमद खान, पापा एडिटर निजामाबाद मॉर्निंग टाइम्स, नरसिमलू, रवि कुमार की शालपोशी गुलपोशी करते हुए अहमद अली खान, बबली नरसैया, भद्रा रेड्डी, संपत राव, गंगादास, प्रभाकर ने शानदार अंदाज में तहनीत पेश कर मुबारकबाद दी और निजामाबाद जिले जर्नलिस्ट यूनियन की निजामाबाद प्रेस क्लब इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने पर मिसाली कामयाबी करार दिया। तेलंगाना में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा, 403 नए केसेस। हैदराबाद में 240 केस। अवाम को कोविड एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ का मशवरा, मास्क और समाजी दूरी को लाजमी कर ले। तेलंगाना में कोरोना केसेस में रिकॉर्ड इजाफा दर्ज हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 403 नए केसेस मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 145 अफराद सेहतियाब हुए। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक इतवार और पीर को 26,704 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें 472 का नतीजा आना बाकी है। हैदराबाद में 240 केसेस दर्ज किए गए, जो कोरोना केसेस में कमी के बाद पहली मरतबा सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान औसतन 150 था 180 केसेस दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन कल के 185 के मुकाबले आज केसेस की तादाद 240 हो गई। रंगारेड्डी में पहली मरतबा 100 से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। जिले में कल 19 केसेस दर्ज किए गए थे, जो आज बढ़कर 103 हो गए हैं। मलकाजगिरी में 11 केस दर्ज हुए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा 2375 अफराद आइसोलेशन के तहत जेर इलाज है। इसी दौरान डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कोरोना से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना केसेस की तादाद में मामूली इजाफा हुआ है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा कि 10 साल से कम उम्र के अफराद और 60 साल से ज़ायद उम्र के बुजुर्गों को बाहर निकलने में एहतियात करनी चाहिए। 20 से 50 साल के अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, लिहाजा इन्हें कोविड कवायद पर अमल करना चाहिए। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा कि हर शख्स को मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करना चाहिए, ख़ास तौर पर घरों से बाहर निकलते वक्त इस्तेमाल को लाजमी कर लें। इन्होंने कहा कि मास्क कोरोना को रोकने के लिए पहला कदम है। इन्होंने अवामी मुकामात पर समाजी दूरी बरकरार रखने का मशवरा दिया। काम के मुकामात पर
साबुन और हैंड वॉश के अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। अवाम से दरख्वास्त की गई कि वो गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। सिर्फ नागुज़र हालात में सफ़र किया जा सकता है। मुख्तलिफ अवारिस का शिकार अफराद को ज़ायद एहतियात का मशवरा दिया गया। नए पेंशन और नए राशन कार्ड्स की खरीद इजराई KTR कोरोना बहरान की वजह से ताख़ीर अहल अफराद को घरों तक पहुँचाए जाएंगे। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने कहा कि अनकरीब नए राशन कार्ड्स और नए पेंशन तमाम अहल अफराद में तकसीम किए जाएंगे। KTR ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में 57 साल उम्र मुकम्मल करने वालों को पेंशन देने का वादा किया गया, जिस पर जल्द अज जल्द अमलावरी का आगाज किया जाएगा। रियासत के अवाम में जो पेंशन हासिल करने के अहल है, इन्हें दफातर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बल्कि अरकान असम्बली और कॉर्पोरेटर्स वगैरह घर घर पहुंचकर नए पेंशन तकसीम करेंगे। तमाम अहल अफराद को पेंशन फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि कोरोना बहरान के बायस नए पेंशन की इजराई में ताख़ीर हुई है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के सिर्फ 29 लाख अफराद को माहाना 200 और 500 रुपये पेंशन दिया जाता था। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 200 रुपये के पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये और 500 रुपये के पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया। इस तरह जुमला 40 लाख लोगों को पेंशन फराहम करने में तेलंगाना हुकूमत 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्चात बर्दाश्त कर रही है। मजीद 3-4 लाख लोगों को पेंशन देने का हुकूमत ने फैसला किया है। शहर हैदराबाद के कॉर्पोरेटर्स घर घर पहुंचकर नए पेंशन फराहम करेंगे। वो इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। साथ ही नए राशन कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। बांसवाड़ा शहर के चिंताला नगराम के पास 15 करोड़ रुपए की मसारिफ से तामीर करदा चेक डैम का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए शहर के चिंताला नगराम के पास 15 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर करदा चेक डैम का जायजा लेते हुए बांसवाड़ा पिटलम के शाहरा के अलावा मांजरा नदी पर मौजूद ब्रिज से ज़खायर आब का जायजा लिया। इस मौके पर इनके साथ मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा अवामी नुमाइंदे, TRS कायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। किसानों को बुनियादी हक दिलाने के लिए अपी रेड्डी की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को किसान ताहयात तक याद रखने का ZP चेयरमैन D विठल राव ने किया इजहार। ZP चेयरमैन विठल राव ने बोधन में मुनक्किदा किसानों के क़ायद अपी रेड्डी की ताज़ियती इजलास में शिरकत की। वो इनकी जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सिताइश करार देते हुए कहा कि किसानों को बुनियादी हक दिलाने के लिए इनकी जानिब से शुरू की गई तहरीक को किसान ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मार्केट कमेटी चेयरमैन VR देसाई, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन श्याम राव, सीनियर सहाफ़ी बलराम राजू और दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్రమంతా తిరుగుతూ ఏదైతే కేసీఆర్ ధైర్యం అట్లాగే అప్పిరెడ్డి గారి బోల్డ్నెస్ నాకు వచ్చినది సందర్భంగా చెప్పగలను. ఏదైనా చేసిన సేవలు చాలా ఉన్నాయి. ఆయన ఎప్పుడు తపన చాలా సందర్భాల్లో సమావేశాల్లో దారుణాల్లో కష్టాల్లో शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर क़याम करदा रॉयल ओक फर्नीचर शॉप का निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता वो ज़िले TRS सदर PUC कमेटी चेयरमैन MLA जीवन रेड्डी के हमरा किया इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने ज़िले TRS सदर आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हमरा शहर के कंटेश्वर बाईपास रोड पर क़याम अमल में लाए गए रॉयल ओक फर्नीचर शॉप का इफ्तिताह अमल में लाते हुए शहर में नए शोरूम का इफ्तिताह अमल में लाने से शहर निजामाबाद तरक्की की जानिब गामजन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS कॉर्पोरेटर्स, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। వటుడింతై అనే విధంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది। ప్రభుత్వ పరంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నప్పుడు కూడా ప్రైవేట్ సంస్థలు చాలా పెద్ద ఎత్తున నిజామాబాద్కు వచ్చి షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు, అవి బట్టలకు చెందినటువంటి షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు, అదేవిధంగా ఫర్నిచర్కి చెందినటువంటి షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు, ఆసుపత్రులు కావచ్చు, హైదరాబాద్లో ఏ విధంగా అయితే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో మరి ఇక్కడి నుంచి షాపింగ్కి పోకుండా అలాంటి వ్యాపార సముదాయాలు నిజామాబాద్లో రావడం చాలా సంతోషకరం। హైదరాబాద్ను తలపించే విధంగా, ఒక మాటలో చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ను మరిపించే విధంగా మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే గణేష్ గుప్తా గారు ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని చాలా గొప్పగా హైదరాబాద్ రాజధాని నగరంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు KTR గారు ఎట్లా అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నారో నిజామాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ను ఒక చూడముచ్చటగా అభివృద్ధి చేసిండు।
మొత్తం డివైడర్లు, సెంట్రల్ లైటింగ్, దాంతోపాటు జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ అభివృద్ధి చెందుతుంది కాబట్టి జిల్లాలో హైదరాబాద్లో ఉన్నట్లాంటి షోరూమ్లు ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 12లో ఏ రాయలోక్ షోరూమ్ ఉందో ఆ రాయలోక్ షోరూమ్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటి మా తిరుపతి రెడ్డి గారికి మరి వారి యొక్క పార్ట్నర్లకు ముందుగా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. मोगलापल्ली युवा सेना के जेर निगरानी में 202 मुफ्त शादी तकरीब मुनक़िद की गई। मेहमान खुसूसी टूरिज्म चेयरमैन उप्पुला श्रीनिवास ने की शिरकत। मोगलापल्ली युवा सेना के जेर निगरानी में 202 मुफ्त शादी कुमार व पन्ना को रस्म रिवाज के मुताबिक अंजाम देते हुए मलबूसात की फराहमी के अलावा रिश्तेदारों के लिए ताम का इंतजाम किया गया। इस शादी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत तेलंगाना टूरिज्म चेयरमैन उप्पला श्रीनिवास ने शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़ों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। इस प्रोग्राम में ए रवि प्रसाद, विजय एस नरसैया, पी चंद्र मुरली, बसव श्रीनिवास, बी वेंकटेश, डॉक्टर आनंद, ए विजय कुमार व दीगर मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम ओलंपिक डे रन का जिले कलेक्टर ने किया इफ्तिताह। जिले कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने जिले हेडक्वार्टर्स पर डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतिमाम ओलंपिक डे रन का इफ्तिताह किया। मुकामी राजा राजेंद्र थिएटर चौरास्ते से ओलंपिक रन को झंडी दिखाकर रवाना करने वाले कलेक्टर ने भी स्पोर्ट्स टॉर्च रोशन करके ओलंपिक रन में हिस्सा लिया। ओलंपिक दौड़बाज बाजार, नेहरू पार्क, गांधी चौक, बस स्टैंड से होती हुई डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ग्राउंड तक जारी रही। इस रन में तुलबा व तालिबात खिलाड़ियों ने बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लिया। बहुत से शौकिया खिलाड़ियों ने जो करतब पेश किए वो मुतासिर कुन थे। इस तकरीब में जिले ओलंपिक एसोसिएशन के सदर गड़बड़ा श्री रामलू, सेक्रेटरी लिंगन्ना, खजांची बोबली नसैया, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर, TNGO लॉ एसोसिएशन के जिले सदर सेक्रेटरी आलोका किशन और अमृत कुमार, स्पोर्ट्स एसोसिएशन के नुमाइंदे नराला सुधाकर, संजीवा रेड्डी और प्रवीण रेड्डी ने शिरकत की। ఆడండి, అది మీ బ్రెయిన్ ని బాగా పనిచేస్తుంది, బట్ బాడీ కూడా పనిచేయాలి కదా. బాడీ కూడా పనిచేయాలంటే అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఆడాలి. ఎంతమంది అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఆడుతున్నారు? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. దించండి, దించండి, చేయి దించండి. ఓకే. సో నేను స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళేవాడిని, చదువుకోవడానికి వెళ్ళేవాడిని కాదు. సోమ అయితేనేమి, ఫుట్బాల్, వీళ్ళందరూ కూడా మన నిజామాబాద్ ఆనిముత్యాలు. వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకొని మీరు కూడా మన జిల్లా ఖ్యాతిని కానీ మన రాష్ట్ర పేరును నేషనల్లో ఇంటర్నేషనల్లో తీసుకురావడానికి మీరు అందరూ ప్రయత్నించాలి। निजामाबाद प्रेस क्लब की 9 मुंतखबा बॉडी की हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद। निजामाबाद MLA बीगाला गणेश गुप्ता, मियां नीतू किरण की शिरकत। मसाइल को हल करने का तयक़ुन। निजामाबाद प्रेस क्लब सदर बी शेखर की सदारत में 9 मुंतखबा एग्जीक्यूटिव बॉडी की आज न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़दा तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी निजामाबाद MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने शिरकत करते हुए हल्फ दिलाया और मुखातिब करते हुए कहा कि सहाफ़ती बिरादरी ऐसा मिसाली काम करते रहे जिससे इनकी मुनफरिद शनाख्त हो। इन्होंने कहा कि निजामाबाद शहर के सहाफ़ियों को डबल बेडरूम रिहायशी अराजी के प्लाट्स और निजामाबाद प्रेस क्लब के लिए और दीगर मसाइल के हल के लिए निजामाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु, उर्दू, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता जर्नलिस्ट को मदऊ करते हुए इजलास मुनक़िद किया, जिसमें सहाफ़ियों को मदऊ करने के लिए निजामाबाद प्रेस क्लब को जिम्मेदारी दी है। इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर गौर ख़ौज़ भी किया जाएगा। इसी प्रोग्राम से मेयर नीतू किरण शेखर, सदर जिले TNGOs यूनियन अलोका किशन, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने भी मुखातिब करते हुए सहाफ़ियों के बेमिसाल खिदमात की सताइश की। क़ब्ल-अज़ीं 9 मुंतखबा सदर प्रेस क्लब शेखर ने मेहमानों का खैर मक़दम करते हुए सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल को पेश किया और मसाइल पर मुश्तमिल याददाश्त निजामाबाद MLA गणेश गुप्ता के हवाले किए। बातज़ा MLA गणेश गुप्ता ने 9 मुंतखब प्रेस क्लब के जमई ओहदेदार मेम्बरान की फर्दन शालपोशी गुलपोशी की इस प्रोग्राम में सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान, अशफाक अहमद खान, MA रऊफ अज़मी, यूसुफुद्दीन खान, सैयद उस्मान अली, सदर जिले जर्नलिस्ट यूनियन नरसैया, राजलिंगम, संपत राव, नरसिमलू, राजू, प्रभाकर, मोहम्मद जावेद, पाशा, अजमत खान व दीगर सहाफ़ियों वो कायदीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की कार्रवाई गंगादास ने चलाई। మంచి అకేషన్ చూసుకొని నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి జర్నలిస్ట్ మిత్రులందరినీ తెలుగు కానీ, ఉర్దూ కానీ, హిందీ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ వీరందరినీ కలిపి
ఒక దగ్గర నేను ఒక డిన్నర్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి మీ అందరూ నేను భోజనానికి ఆహ్వానిస్తా. ఆ రోజు మీరు కేవలం అతిథిగా మాత్రమే రావాలి. ఆ రోజు మీకు కెమెరాలు వద్దు, వీడియో కెమెరాలు వద్దు, కేవలం ఒక ఫంక్షన్కి పోతున్న మాదిరిగా రండి. ఆ రోజు కూర్చొని మీకు ఏమేమి నేను చేయగలుగుతానో, ఏమేమి నా చేతులు ఉన్నాయో, ఏమేమి నా చేతిలో లేవో అవన్నీ నేను ఆ రోజు ప్రకటిస్తాను. जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के नगर राज्य के अहकामात के मुताबिक सीताराम नगर कॉलोनी में धावा करते हुए इम्तनाअत करदा गुटके को किया जब्त। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस के नगर राज्य के अहकामात के मुताबिक टास्क फोर्स अहदेदारों ने हासिल करदा इत्तला पर 5 टाउन पुलिस स्टेशन के हाथे में वाक़े सत्यराम नगर कॉलोनी में धावा करते हुए 50,000 मालियती रकम का इम्तनाअत करदा गुटके के अलावा दीगर खलीजी ममालिक सिगरेट को जब्त करते हुए इसमें मुलविस जी श्रीनिवास को तहवील में लेने का टास्क फोर्स अहदेदारान ने किया इंकशाफ। जिले टियारा सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शहर का दौरा करते हुए मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत में मुनक़दा शादी तक़ारिब में की शिरकत व नए जोड़े को दी मुबारकबाद। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टियारा सदर जीवन रेड्डी हल्का असम्बली आर्मूर का दौरा करते हुए मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत में मुनक़दा शादी तक़ारिब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की व नेक तौक़ात वाबस्ता करने के बाद इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए ताम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में इनके साथ टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन, अवामी नुमाइंदे, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। आर्मूर शहर में क़याम अमल में लाए गए सुश्रू चिल्ड्रन हॉस्पिटल का ज़िले टियारा सदर आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। जिले टियारा सदर आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शहर में क़याम अमल में लाए गए सुश्रुत चिल्ड्रन हॉस्पिटल बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हॉस्पिटल से रुजू होने वालों को तशफ़ी बख्श इलाज मुआवजा फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोनिका रेड्डी, डॉक्टर गणेश रेड्डी, हल्के इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मन्नू, टीआरएस सीनियर कायदीन पी प्रेम, टीआरएस पार्टी सिटी सदर पूजा नरेंद्र व दीगर हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखने वाले तिब्बी अमले ने शिरकत की। बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए की जानिब से सदर जमहूरिया के तौर पर उड़ीसा के साकिन द्रौपदी मुर्मू का इंतखाब अमल में लाया गया। बीजेपी के ज़ेर निगरानी एनडीए की जानिब से सदर जमहूरिया के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मुंतखब होने पर हिंदुस्तान की पहली कबायली सदर और दूसरी खातून सदर बन गई हैं, जो कि 20 जून 1958 को मुर्मू उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पैदा हुई। मुर्मू ने 2015 से 2021 तक झारखंड के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए अपने अनमोल नफूज छोड़ने में कामयाब हुए। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मांजरा प्रोजेक्ट डैम की तामीर से हल्के बांसवाड़ा व जुक्कल की अवाम में खुशी की लहर। 15 करोड़ की लागत से जारी तामीरी कामों का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुनाम श्रीनिवास रेड्डी ने लिया जायजा। बीजेपी ने सदारत इंतखाब के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का किया ऐलान। इन्हें पहले कबायली सदर व दूसरी खातून सदर जमहूरिया बनने का होगा एजाज हासिल। समाज में इंसाफ व अदल के लिए काम करने वाला पेशा सहाफत। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने निजामाबाद प्रेस क्लब की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करते हुए किया खिताब। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दौरा आर्मूर अवामी मसाइल से वाकफियत हासिल की व अवामी शिकायतों की समाअत करते हुए मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। शहर में टास्क फोर्स का धावा। 1,50,000 रुपयों की मालियत का गुटखा व सिगरेट जब्त। मेट्रो सिटी की तर्ज पर शहर में क़याम करदा फर्नीचर शोरूम रॉयल लुक का अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, टीआरएस जिले सदर व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।